In this video, we will discuss about anatomy of Selaginella stem. Selaginella is a member of Pteridophyta. Main plant body in Selaginella is sporophyte. Now, if we see its main plant body, it is differentiated into root, stem, and leaves. So, this plant body is diploid in genetic constitution. Now, these are the leaves borne on the stem, and this area is stem. So, this is stem. Now, if we cut the section of the stem and see its internal structure, this is called as anatomy. Now, we'll study anatomy of Selaginella stem in detail. Now, this will be the outline of the stem. If we see this is the outline of the stem of the Selaginella, and this is bounded on outer side by a layer called as epidermis. Now we'll see its details. Now this is epidermis, which is made up of parenchymatous tissue, mean thin walled tissue, and this is protected by a covering called as cuticle. So this is cuticle and this is epidermis, which is made up of thin walled cells. Now below the epidermis, this zone is called as cortex. So this is cortex, which is differentiated into two zones again, right? Now this zone is made up of thick walled cells. So this is called as sclerenchymatous tissue. Sclerenchymatous tissue is thick walled. Now we can make the cells thick, or we can also make the cells double wall like this to make the sclerenchymatous tissue. मोटी पेंसिल से बना सकते हैं, या इसको हम थिन पेंसिल से इसको डबल वॉल करके हम इसको थिक वॉल शो कर सकते हैं व्हेन वी मेक इट सेलुलर डायग्राम. Then inner to this is present cortex, this area. This is called as parenchymatous. So here we can say cells which are parenchymatous, they are thin walled like this. Again made up of cellulose, and this is parenchymatous cells enclosing spaces. And these spaces, they are intercellular spaces. So here we can see this is the parenchymatous cortex, which is made up of thin walled cells enclosing intercellular spaces. Now this region is epidermis protected by cuticle. This zone is cortex. This outermost zone, which is below the epidermis, is also called as hypodermis. Hypo mean below, dermis mean below dermis, and this zone is the parenchymatous cortex. Now inner to cortex will be present endodermis layer, but here this endodermis layer is modified. Now this is modified into, we can see here, these are trabeculi. Now these trabeculi are unicellular, made up of single cell, and they have thickenings on them, right? रेडियल और टेनेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग है, और ये एंडोडर्मिस की मॉडिफिकेशन है. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एयर स्पेसिस भी हैं जो ट्रैबिकुलाई कनेक्ट कर रहे हैं स्टील को और कॉर्टेक्स को. और ये जो है किससे बनी हुई हैं? एंडोडर्मिस से बनी हुई हैं. तो हम कह सकते हैं these are modified endodermal cells. So these are trabeculi are modified endodermal cells. Here we can see here, right? So here it is written, this is modification of the endodermis. Now these trabeculi, they possess Casparian thickenings जो endodermis पे भी होती हैं, तो वो इसके ऊपर भी प्रेजेंट हैं. दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं these are air spaces और lacuna. So इनको हम बोलेंगे air spaces और lacuna, खाली जगह.
एंड बेसिकली ये एक ही सेल की बनी हुई है, यूनिसेलुलर है, लेकिन जैसे जब इसके ऊपर थिकनिंग्स आती हैं तो सम टाइम दिस में अपेयर टू बी मल्टी सेलुलर। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रैबिकुलाई, जो एंडोडर्मिस की मॉडिफिकेशन है, और इसमें एयर स्पेसेस भी हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका स्टील। तो ये सेंटर में जो है, दिस इज़ द स्टील ऑफ द सिलेजिनेला स्टेम, एंड दिस इज़ बाउंडेड बाय अ लेयर, दिस इज़ कॉल्ड एज पेरिसाइकल। अगर एंडोडर्मिस है तो उसके अंदर एक लेयर है विच इज़ पेरिसाइकल, क्योंकि एंडोडर्मिस मॉडिफाइड होकर क्या बना दिया, ट्रैबिकुलाई। अब पेरिसाइकल हो गया ये वाली लेयर। पेरिसाइकल भी थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ है, तो इसको भी हम पतला रखेंगे जब बनाएंगे डायग्राम। अब सेंटर में है इसके जाइलम, सो दिस इज़ द जाइलम। अब ये जो बड़े बड़े हैं जाइलम, दिस इज़ मेटाजाइलम, और ये छोटे छोटे हैं प्रोटोजाइलम। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे अभी मोटा बनाया है तो मोटा बना सकते हैं, नहीं तो इसको भी हम इसके डबल वॉल बना सकते हैं। अब ये जो छोटे छोटे होंगे ये हैं प्रोटोजाइलम, और जो बड़ा होगा दिस विल बी द मेटाजाइलम। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है दिस इज़ द मेटाजाइलम पार्ट, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ प्रोटोजाइलम। अब दोनों साइड पे यहाँ पर और यहाँ पर प्रोटोजाइलम है, और सेंटर में क्या है, मेटाजाइलम। तो हम कहेंगे कंडीशन इज़ डायक। अब प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, स्टेम के बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो हम बोलेंगे दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एग्जैक। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम inner side. So protoxylem is facing toward the outer side of the stem. We can see here this is facing toward the outer side of the stem, and this is in the center. So this condition is called as exarch. क्योंकि दोनों तरफ प्रोटोजाइलम है, this is called as dioic condition. ओके, सो अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे इसका ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज़ फ्लोएम। अब ये जो फ्लोएम है ये सराउंड कर रहा है पूरा जाइलम को। तो इनके सेल्स को हम बनाने के लिए छोटे छोटे सेल्स, मुझे पतला पेन लेना है, तो इसको हम बिल्कुल स्मॉल ऐसे बनाएंगे। ऐसे करके हमने फ्लोएम के सेल्स बनाने हैं। अब जो फ्लोएम है बेसिकली वो सीव ट्यूब्स का बना हुआ है, और ये पूरा उसको सराउंड कर रहा है जाइलम को। जाइलम जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया डायक है और एग्जैक है, और फ्लोएम उसको पूरा सराउंड कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ सिलेजिनेला। अब अगर हम इसको ओवरऑल डायग्राम देखेंगे तो हमें ऐसे नज़र आएगा। तो हमने देखा बाहर ये वाली लेयर जो है दिस इज़ एपिडर्मिस प्रोटेक्टेड बाय क्यूटिकल, दिस जोन इज़ कॉर्टेक्स, सेंटर में इसके स्टील है। अब स्टील जो है दिस इज़ कनेक्टेड विद द कॉर्टेक्स जोन विद द हेल्प ऑफ ट्रैबिकुलाई, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अब ये जो सारा स्टेम का एनाटॉमी है ये पूरा हमने सेलुलर बनाना है। मैंने एक पार्ट इसका ऐसे सेलुलर बनाया है, ये पूरा आप सेलुलर बना सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको इसको अटैम्प्ट करना है तो आप ऐसे एक पार्ट दिखा सकते हैं, पूरा सेलुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें टाइम बहुत लगता है। तो ये हो गया एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलेजिनेला स्टेम। Thank you for watching. If you have any question, you can ask me in the comment box. If you like my video, please like, share and subscribe.